WHO Labor Care Guide. It's a very easy tool. In February 2018, the World Health Organization published a consolidated set of recommendations on intrapartum care for a positive childbirth experience. So ये 2018 में publish हुए. It's a set of recommendation, consolidated set of recommendation on intrapartum care for a positive childbirth experience. A WHO recommendation on intrapartum care specify evidence-based practice that should be implemented throughout the labor and the immediate postnatal period. So this is very important. Implemented throughout labor and the immediate postnatal period. WHO recommendation covers. अब WHO क्या recommend कर रहा है, उसका consolidate document क्या है? That covers the care throughout the labor and the birth, the care on the first stage of the labor, third stage of the labor, care of newborn, and care of the woman after birth. So this is the WHO recommendation. What is the labor care guide? It's a tool for implementing recommendations on intrapartum care for a positive childbirth experience. So this is a tool for implementing recommendations, जो WHO की recommendations है, on intrapartum care for a positive childbirth experience. Aims of the labor care guide. What are the aims of the labor care guide? This was the exam question. I'm sure this was an exam question. Aim of the labor care guide. Guide the monitoring and documentation of well-being of women and babies and the progress of the labor. In simple word, this is the monitoring and documentation of maternal and fetal well-being and the progress of the labor. Guide skilled health personnel to offer supportive care. So here, offer supportive care throughout labor to ensure a positive childbirth experience for women. So supportive care means champion or the pain management, the fluids, the mobility, whatever. So the supportive care throughout the labor. Assist skilled personnel to identify and address emerging labor complications by providing reference threshold for labor observation that are intended to trigger the reflection and specific action if abnormal observation is identified. Hence, it should contribute to timely referral when required. So identify and address the labor complications by providing reference threshold. आपके पास reference threshold है कि ये होगा तो ये problem है, ये है तो ये problem है. You have to identify and then take a specific action if you identify an abnormal observation. Then timely referral. अगर आप tertiary care में नहीं हो और primary और secondary level पे हो, then timely referral when required. This is the third aim. First aim, monitoring, documentation of maternal and fetal well-being and the progress of labor. Second is the supportive care, offer supportive care. Third, identify and address the labor complications by providing reference threshold and specific action if abnormal observation and timely referrals when required. It prevents the unnecessary use of intervention. Sorry, this is not innovation. This is the intervention in the labor. Support unnecessary use of the oxytocin, unnecessary use of the um, cesarean section, unnecessary instrumental supply, instrumental application. So prevent unnecessary use of interventions in the labor. Support audit and quality improvement of the labor management. If we need the audit on the labor management,
on the labor management, this will help okay, what we are doing, whether we are doing a right practice or the wrong practice. What is the ideal practice? And we compare our practice with standards. The standard is the NICE guideline, this WHO Labor Care Guide. So we do an audit. What we are doing, we collect our data, we see these all pro formas, all these labor care guide, and we do the audit, and in this way we have to improve the labor management, the quality improvement of the labor management. So these are the aims of labor care guide. For whom should the labor care guide be used? अब ये किसके लिए है labor care guide? The labor care guide has been designed for the care of women and their babies during labor and birth. It includes assessment, observations that are essentials for all pregnant women, regardless of their risk status. High risk है, low risk है, प्राइमरी है, मल्टी है, सब में करनी है, सब में. However, it was primarily designed to use for the care of healthy women. इसका primary aim क्या है? For the healthy women and their babies, women with low risk pregnancies. High risk women may require additional and specialized monitoring and care. हाई रिस्क के तो अकॉर्डिंगली उसकी मॉनिटरिंग होगी, जैसे PIH की है, प्री-क्लेम्शिया की है, तो उसकी मॉनिटरिंग अकॉर्डिंगली होती है, उसकी हम हर चीज चेक करते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड केयर. और द लो रिस्क इज लेबर केयर गाइड इज इनफ. व्हेन शुड बी लेबर केयर गाइड बी इनिशिएटेड? आई थिंक ये भी एक एग्जाम क्वेश्चन था. So documentation on the labor care guide should be initiated when the woman enters the active phase of the first stage of the labor. Initially it was 3 to 4 centimeter, but now the WHO says it's 5 centimeter or more. 5 centimeter or more, then you label as the active stage of the active first stage of the labor, regardless of her parity and membrane status. तो पैरिटी जो भी है, मेम्ब्रेन स्टेटस जो भी है, अगर 5 सेंटीमीटर और मोर देन 5 सेंटीमीटर डायलेटेशन है, you have to initiate this labor care guide. Although the labor care guide should not be initiated during the latent phase of the labor, it is expected that women and their babies are monitored and they receive labor care and support during the latent phase. Once initiated, the labor care guide will support continuous monitoring throughout the first and second stage of the active labor. Where should be labor care guide be used? अब पहले था why, these aims are why we are using this. So because our aims are this. For whom, किसके लिए? When, कब करना है? Where? How, when, where, why? The labor care guide is designed for use at all levels of care in health facilities, although the plane of action will be depending on the level of the care. The use of labor care guide can facilitate early identification of the potential complications, hence it should contribute to timely referral when required. तो हर लेवल पे इसको करना चाहिए, मगर the level of care that depend upon action plan हमने क्या लेना है, that depend upon the level of care. अब प्राइमरी लेवल केयर में आप लोग फॉर्सेप्स तो नहीं लगाओगे, सेकेंडरी लेवल केयर में आप प्राइमरी पे आप सीजर तो नहीं करोगे. सो दैट्स डिपेंड, द एक्शन प्लान ऑफ एक्शन विल डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ द केयर. तो टाइमली रेफरल, अगर आप ये प्राइमरी लेवल पे भी कर रहे हो तो टाइमली रेफरल्स व्हेन रिक्वायर्ड. नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ दिस WHO लेबर केयर गाइड. इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इस पेपर में क्या चीज है? इस पेपर में 7 सेक्शंस है which were adapted from the previous photographs design, but थोड़ी सी चेंजेस है उस फोटोग्राफ से. वो क्या चेंजेस है वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे. सेक्शन 1 में identify information and labor characteristics at admission. Section 2 is supportive care. Section 3 is the care of baby. Section 4 is the care of woman. Section 5 is the labor progress. Section 6 is medication. Section 7 is shared decision making.
अब जो पार्टोग्राम में था उसमें ये हम लिखते थे, उसका सब कुछ लिखते थे ना, बायोडेटा, एवरीथिंग, डेट ऑफ एडमिशन, द रिस्क फैक्टर्स, व्हाटएवर। मगर सपोर्टिव केयर नहीं थी। केयर ऑफ बेबी थी जब देखते थे, केयर ऑफ वुमन थी, अब उसका ब्लड प्रेशर थे। हेलो गाइस, माय वॉइस इज क्लियर? हेलो? यस मैडम, योर वॉइस इज आ रही है आपकी वॉइस में। क्लियर है ना? स्टोर जाने ओके, मैडम। सो ये यू हैव टू सी दिस। पार्टोग्राम में एक ये नहीं था सपोर्टिव केयर, बायोडेटा था, बच्चे को मॉनिटर कर रहे थे, माँ को मॉनिटर कर रहे थे, लेबर प्रोग्रेस देख रहे थे कि डायलेटेशन हो रही है, पीटे प्रेजेंटिंग पार्ट नीचे डाउन हो रहा है, स्टेशन उसकी नहीं हो रही है। ये था मेडिकेशन, उसको फ्लूइड दे रहे हैं, सिंटो दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं वो भी था, मगर ये नहीं था शेयर्ड डिसीजन मेकिंग। ये दो चीजें नहीं थी in the partogram, right? So if you see this carefully and compare the partogram, you immediately notice that what is the difference in this labor care guide and what is the difference in the partogram. The healthcare provider should record observation for all sections soon after the woman is admitted to the labor ward. ठीक है, वो उसकी सारी ऑब्जर्वेशन लिखेगा। The remainder of the labor care guide is then completed following subsequent assessment throughout the labor. जो उसका हॉरिजेंटल टाइम एक्सिस था, हॉरिजेंटल इज द टाइम एक्सिस फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द करेस्पॉन्डिंग टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मैं आपको दिखा रही हूँ हॉरिजेंटल क्या है। एंड वर्टिकल रेफरेंस वैल्यूज एक्सिस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल। जो वर्टिकल है वो ऐसे है, ठीक है, वो वैल्यूज है। जो हॉरिजॉन्टल है वो टाइम एक्सिस है। सॉरी गाइस, मुझे कॉल रिसीव करनी पड़ी है, एक मिनट।
sorry guys, sorry. So this is the, see here, the first session, horizontal time axis for documentation of the corresponding time. This is the horizontal session. This is the horizontal session. This is the horizontal. यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है. आप अपनी अपनी लेबर केयर गाइड खोलें जो मैंने अपलोड किए व्हाट्सएप में, उसको खोलें और देखते जाएं कि दिस इज द टाइम जोन, दिस इज द हॉरिजॉन्टल. आपने ये टाइम का है और ये एक खाना 1 आवर का है. ठीक है, ये एक 1 आवर और दिस इज 30 मिनट्स. ये इसके हाफ में, दिस इज द 30 मिनट्स. ये 1 घंटे का है 1 आवर और small is of 30 minutes, half, right? So see here the 7 structures. Section 1, identify information and labor characteristics. ये है section 1. See here, this is the section 1. This is the section 2, the supportive care. Section 3, ये सारे इसके section है. Section 1, section 2, section 3, 4, 5, 6, 7. ये 7 sections है. Of what is the difference in this and the partogram? The difference is that, see here, the section 7 is not in the partogram, the decision making. If you clearly see this tool, you see this is not in the partogram. This section 2, the supportive care, is also not in the partogram. See here, this is the second stage of the labor. This is not also in the partogram. ये partogram में नहीं था. ये यहाँ पे new additional information है. The second stage को यहाँ पे add किया गया है, right? ये एक तीसरी change है, difference है जो partogram से. The fourth one difference is this is the alert column. See here, alert column उसमें कैसे था? ऐसे partogram में जा रहा था. यहाँ पे ऐसे alert column, ये ऐसे line थी और एक्टिव लाइन ऐसे थी, ऐसे था ना. दिस इज द अलर्ट कॉलम एंड दिस इज द एक्टिव. ठीक. सो यहाँ पे ये चीज नहीं है. द अलर्ट कॉलम टोटली कंपाइल्ड with a reference threshold on the side. See, this is total the alert column. ये सारा alert column है. तो ये पार्टोग्राम में नहीं है. दिस इज द डिफरेंस. तो अलर्ट कॉलम में काफी सारी चीजें जो पार्टोग्राम में नहीं है और यहाँ पे एक एक चीज को एक्सप्लेन किया गया है. अलर्ट कॉलम विथ रेफरेंस थ्रेशोल्ड कि यहाँ पे ये आपका रेफरेंस है, इसे ऊपर होगा तो ये अलर्ट है, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस इन द पार्टोग्राम. दिस इज द डिफरेंस इन द पार्टोग्राम. दिस इज द डिफरेंस इन द पार्टोग्राम. दिस इज डिफरेंस फ्रॉम द पार्टोग्राम, राइट? लेबर मॉनिटरिंग टू एक्शन, इसमें 4 चीजें: असिस, रिकॉर्ड, रेफरेंस थ्रेशोल्ड एंड प्लान. अब इस लेबर मॉनिटरिंग में एक्शन, हमने मॉनिटर से एक्शन तक कैसे जाना है, ये एक अप्रोच है. ARCP. असिस द वेलबींग ऑफ मदर, बेबी एंड लेबर प्रोग्रेस. रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट ऑब्जर्वेशंस. चेक रेफरेंस थ्रेशोल्ड, कंपेयर करें ऑब्जर्वेशंस को विद रेफरेंस वैल्यूज इन द अलर्ट कॉलम. अलर्ट कॉलम में सब कुछ लिखा हुआ था. देन प्लान, आपने क्या इंटरवेंशन करना है. कंसल्टेशन विद वुमेन एंड डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंगली, राइट? हेलो.
सॉरी गाइस, देयर इज इमरजेंसी इन द लेबर रूम, वो बार बार मुझे कॉल कर रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। अब सेक्शन 1 पे आ जाएं, आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन इन लेबर। WHO की क्या रिकमेंडेशन है? फर्स्ट स्टेज लेटेंट फेज 5 सेंटीमीटर तक होता है, और द गर्ल्स डोंट नो अबाउट दैट कि फर्स्ट लेटेंट फेज 5 सेंटीमीटर तक है, और एक्टिव स्टेज 5 सेंटीमीटर आर मोर को बोलते हैं, 5 सेंटीमीटर आर मोर देन 5 सेंटीमीटर। बट गर्ल्स को वही पुरानी चीज़ें याद थी, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है लड़की ने नहीं पढ़ा हुआ था। सो यू हैव टू रीड इट, द WHO recommendation for the section 1, the latent first stage is up to the 5 centimeter and the active stage is 5 centimeter or more, right? This is C here, this is the first stage. Document the patient record. So ये patient का record है, नेम, ये सारा आप अपनी अपनी खोलें लेबर केयर गाइड और उसमें देखते जाएं। ये पेशेंट का बायोडेटा है, और ये कब भरना है? दिस सेक्शन शुड बी completed with information obtained with the information when the active labor diagnosis is confirmed. ये एडमिशन पे आपने जो इन्फॉर्मेशन ली है ना, वही इन्फॉर्मेशन इसमें डालेंगी। सपोर्टिव केयर, this is the session for supportive care, the second session. See here, अब ये टाइम सेशन है, ये टाइम है। This is the horizontal zone of time, this is the vertical zone of reference threshold, ये alert column है। अब companion, pain relief, oral fluid, posture, right? अब सपोर्टिव केयर में क्या है, आपके साथ कंपेनियन है नहीं है? नहीं है, एन है तो नहीं है। पेन रिलीफ, यस नो, एन। ओरल फ्लूइड, पोस्चर, एसपी मीन सुपाइन पोजीशन, तो जो भी उसका पोस्चर है, सुपाइन है, स्क्वेटिंग है, लेफ्ट लेटरल है, मोबाइल है, वो आप वही लिखोगे। मोबाइल है, जो भी है, इसमें ऐसे ही फिल करना है। कंपेनियन साथ आया ही नहीं आया है, पेन रिलीफ वो ले रही है नहीं ले रही है, ओरल फ्लूइड्स ले रही है नहीं ले रही है, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से यहाँ पे फिल करना है। 9 बजे से, सपोज करो ये 9 बजे आई, तो 9 AM यहाँ पे लिख दें, 9 AM या 10 AM, कितने बजे भी आई, 7 बजे आई, यहाँ पे लिख दें। ये एक शुरू वाला घंटा, 1 एवरी 4 आवर लीव, फिर हम PV करते हैं आफ्टर 4 आवर्स, 1 2 3 4, तो यहाँ पे करना है ना आपने। I have seen the many girls who have started from this side. अब आपने स्टार्ट तो कर लिया, अब आगे जाके वो फंसते हैं, अब मैं कहाँ जाऊँ? मैम तो दोबारा रिपीट करें प्लीज। बेटा दिस इज द टाइम जोन, दिस इज द टाइम जोन। ये एक एक घंटे का खाना है, एक एक घंटे का। तो अगर पेशेंट सुबह 7 बजे आइए, तो आपने 7 यहाँ पे लिखना है ना, 7 AM। 4 घंटे के बाद आपने एग्जामिनेशन किया, तो ये बज के 8 9 10 11, 4 घंटे। तो आपने यहाँ पे 11 AM लिखा है। जो फाइंडिंग्स आएंगी अभी इसी खाने में आएंगी ना, यहाँ पे तो नहीं आएंगी। ये तो एडमिशन वाली फाइंडिंग थी, जहाँ पे आपने इसको इनिशिएट किया था एट 5 सेंटीमीटर और मोर देन 5 सेंटीमीटर, आपने यहाँ से इनिशिएट किया है इसको। इसकी जो भी फाइंडिंग्स थी वो आपने यहाँ पे मार्क कर ली। 4 घंटे के बाद आप यहाँ पे आपने फाइंडिंग्स मार्क करनी है। 4 खानों के बाद 1 2 3 4 यहाँ पे करनी है, ठीक है। मैडम मेरा एक सवाल था ना आपसे कि जब हम पेशेंट की पीवी करेंगे और वो जब 5 CM होगी, तब हम टाइम मेंशन करेंगे कि 9 बजे ये 5 CM थी, और फिर हम ऑनवर्ड जाएंगे, ऐसे? यस एग्जैक्टली। 2 बजे अगर ये 5 CM हुई है, तो आपने लेबर केयर गाइड ही स्टार्ट 2 बजे करनी है, उससे पहले नहीं करनी। ये 10 दफा मैं पहले बता चुकी हूँ, व्हेन इट शुड बी इनिशिएटेड। सी हियर, व्हेन शुड द लेबर केयर गाइड बी इनिशिएटेड, कब स्टार्ट करनी है? 5 सेंटीमीटर और मोर। तो जब जिस टाइम ये 5 सेंटीमीटर होगी, उसी टाइम स्टार्ट करनी है ना बच्चा, पहले तो करेंगे ही नहीं आप। तो जो उसकी फाइंडिंग
5 सेंटीमीटर जिस टाइम भी हुई, 2 बजे हुई, 3 बजे हुई, 4 बजे हुई, तो यहाँ पे आप लिखेंगे वो टाइम। फिर उसके 4 घंटे के बाद जो भी फाइंडिंग्स आएंगी, 4 खानों को छोड़ेंगे, 1 2 3 4 यहाँ पे करेंगे, तो उसकी सारी ये फिल यहाँ पे होंगी। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. Thank you. Section 3, the care of the baby. This was designed to facilitate decision making while monitoring the well-being of the baby. अब ये डिजाइन किया गया है कि आप मॉनिटर करेंगे बच्चे को, उसके बच्चे की वेलबींग की, और बच्चे की वेलबींग एवरी 30 मिनट्स फीटल रेट ऑस्कल्टेट करते हैं। WHO की रिकमेंडेशन है कि आप नाट स्टेथोस्कोप से करें या डॉपलर अल्ट्रासाउंड से करें। फर्स्ट स्टेज में एवरी 30 मिनट्स, 15 to 30 minutes, active first stage, see here, active first stage, every 5 minutes in the second stage, right? K-put molding and the status of the amniotic fluid should be regularly monitored to identify the risk for adverse birth outcome. अब K-put भी बच्चे को ही होगा, माँ को तो नहीं होगा। K-put molding, color of the amniotic fluid, ये भी बच्चे के ही इंडिकेशन है फॉर द असेसमेंट ऑफ द फीटल वेलबींग। सिर्फ फीटल हर्ट्स नहीं, ये सारी चीजें देखनी है आपने। ठीक, तो दैट्स व्हाई ये कॉलम था 1 का। अब इसको देख लें, एक कॉलम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इन द 30 मिनट्स, राइट? 30 मिनट्स, क्योंकि आपने फीटल हर्ट्स एवरी 30 मिनट्स चेक करने इन द फर्स्ट एक्टिव फर्स्ट स्टेज। ये एक्टिव फर्स्ट स्टेज है। सेकेंड स्टेज में देखें, यहाँ पे आपने 5 मिनट में चेक करने हैं, राइट? अब एक खाने को 4 उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सेकेंड स्टेज में, देख लें इसको। सो अलर्ट कॉलम, सी हियर द बेसलाइन फीटल हर्ट्स, ये आपका रेफरेंस है। पहले वहां पे रेफरेंस नहीं होता था, हम सिर्फ लिखते थे कि 100 है, 110 है, 115 है, मगर यहाँ पे हम लिखते हैं 110, 120, 130, कितने भी आ रहे हैं आप लिखेंगे कि 5 सेंटीमीटर पे इसके फीटल हर्ट्स ये थे, आधे आधे घंटे में आपने लिखने सारे। तो अगर 110 से कम है या 160 से ऊपर है, दिस इज द अलर्ट, यू हैव टू अलर्ट व्हाई दिस इज हैपेंड। डिसेलरेशन है, L for late diesel, amniotic fluid, meconium, M for meconium, तो अगर meconium, B for blood, अगर amniotic fluid meconium है तो M1 mean grade 1, M plus mean grade 1, grade 2, grade 3, अब M2 प्लस है तो ग्रेड 2, M3 प्लस है तो ठीक है। अगर मीकोनियम नहीं है, इंटेक्ट मेम्ब्रेन है तो आई लिख दें, इंटेक्ट मेम्ब्रेन। B for blood, blood stain है meconium। fetal position, ट्रांसफर से क्या है fetal position, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर है, ट्रांसफर से जो भी fetal position है वो आप मेंशन कर दें। केपट 1 प्लस है, 2 प्लस है, 3 प्लस है, कितना केपट है हर खाने में आप मेंशन करेंगे। माउल्डिंग 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ये आप माउल्डिंग के खाने में लिखेंगे। और ये पार्टोग्राम में नहीं था कि केपट है, माउल्डिंग है, फीटल पोजीशन कौन सी है, ये तीनों चीजें नहीं थी। इवन द फीटल हर्ट ट्रेसलरेशन भी नहीं थी, तो ये डिफरेंट है इन दिस पार्टोग्राम, राइट? क्लियर, समझ में आ गया? Coming to the fourth session, the care of the woman. This facilitates decision making for consistent, intermittent monitoring of the woman's well-being. अब ये आ गई माँ की मॉनिटरिंग, और क्या था? फीटल एंड मैटरनल वेलबींग। सो माँ की मॉनिटरिंग, पल्स, ये अलर्ट कॉलम है। हेलो,
और ये जो सेकंड स्टेज में फीटल हार्ट रेट वाला खाना था, इसको डिवाइड किया गया है 15 मिनट्स में ना, 30 मिनट्स को डिवाइड किया गया है 15 मिनट्स में। 5 minutes. वो आप 4 आवर की बात कर रही हैं, 1 आवर की। नहीं नहीं, ये जो सेकंड स्टेज है ना फीटल हार्ट रेट, मैडम ने कहा ना कि उसको पहले अच्छा नहीं, हाँ सेकंड स्टेज में डॉक्टर एवरी 5 मिनट्स तो डॉक्टर ने कहा फीटल हार्ट देखेंगे, एंड एक्टिव स्टेज आफ्टर द 5 सेंटीमीटर जो 15 to 30 मिनट्स। नहीं, ये जो खाना दिया गया ना उसको डिवाइड किया गया ना 30 मिनट वाले खाने को। हाँ हाँ, वो 30 मिनट्स लेंगे, 30 मिनट्स लेंगे, 1 आवर को हाफ किया है ना। हाँ 30 मिनट, लेकिन ये जो सेकंड स्टेज में दिया गया है तो इसको 30 मिनट्स को भी डिवाइड किया गया है ना 15-15 मिनट। तो यानी कि सेकंड स्टेज में इसमें हम 15-15 मिनट्स में रिकॉर्ड करेंगे फीटल हार्ट रेट। ये ना ये मैडम। पता नहीं, मैंने नहीं देखा मैडम, आएंगे देखते हैं। चलो, आपका नाम? सफिया। नाजिया क्या के पूछ रही हो? यार ये मैं पूछ रही हूँ कि ये जो सेकंड स्टेज में ना फीटल हार्ट रेट को मैडम ने डिवाइड किया है ना 30 मिनट्स वाले खाने को 2 में डिवाइड किया है ना, तो 2 मिनट 30 मिनट्स को डिवाइड किया जाए तो 15-15 मिनट्स में हम फीटल हार्ट रेट रिकॉर्ड करेंगे ना सेकंड स्टेज में, 5 मिनट्स नहीं तो नहीं, नहीं। 5 5 5 मिनट वो कह रही थी, तो, 5 मिनट्स एवरी 5 मिनट्स। तो इन्होंने लेबर केयर गाइड में तो 15-15 मिनट्स का दे दिया ना हमें। देखो सेकंड स्टेज को कैसे डिवाइड करें। बच्चे हाँ सेकेंड मुझे खुद ये 5 मिनट में करना है, 5-5 मिनट में। सेकेंड स्टेज में एवरी 5 मिनट्स करना है, तो इसको भी आप हाफ में कर लोगे, ठीक है। अच्छा जी मैडम, यानी कि इसको भी हम हाफ में करेंगे, जो दिया गया है उसको भी हाफ में करेंगे। 5 5 मिनट्स में करना है, ये WHO की रिकमेंडेशन है। फर्स्ट स्टेज में एवरी 15 मिनट्स to 30 मिनट्स, ठीक है, इसलिए जी इसको कॉलम को हाफ किया गया है, ठीक है। दिस इज द फॉर मैटरनल पल्स और मैटरनल वेलबींग। तो पल्स मैम ये एक्सक्यूज मी, सेकंड स्टेज में जो कॉलम दिया हुआ है वो 0 से जो 1 है वो 1 आवर है या हाफ एन आवर है? मेरी बात सुनो, ये क्या है, ये क्या है, ये 1 आवर है या हाफ एन आवर है? 1 आवर लग रहा है लग रहा नहीं थोड़ा। है, श्योर इट्स अ 1 आवर। हम्म। तुम FCPS कर रहे हो और मुझे बोलना नहीं चाहिए कि दिस इज क्लियर रिटन कि दिस इज द टाइम जोन और दिस इज द आवर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज द टाइम तो और मैम आवर। मैम ये एवरी 5 मिनट्स तो ये कॉलम्स बहुत कम है इसके लिए। दिस इज द आवर, ठीक है। इस 1 घंटे को बीच में ये लाइन मार के, ये तो बच्चा BP पल्स का है ना, दिस इज नॉट फॉर दिस, ये BP पल्स का है। You are going for this monitoring. This is अच्छा for the features. Why you समझ आ going गई। BP ओके pulse ओके temperature? ओके। ये मुझे इरिटेट कर रहा है आप लोगों का एटीट्यूड कि you are going to appear in the exam even you don't know the where we are and we are talking about the whether fetus or mother. ये आप लोग एक दूसरे को क्यों उलझा रहे हो? भाई बच्चे का कॉलम सेपरेट है। This is for the fetal monitoring. This is for the maternal monitoring. See here, pulse, BP, diastolic, systolic, आप बच्चे का देखोगे तो कॉमन सेंस से बच्चा, दिस इज अ कॉमन सेंस। और ये क्लियर लिखा हुआ है कि ये टाइम है और ये घंटा है, ये घंटा है, ये घंटा है पूरा, और ये आधा आधा घंटा है। ये माँ की मॉनिटरिंग है, ये बच्चे की मॉनिटरिंग नहीं है। सेक्शन 4 इज फॉर द मदर। यस मैम, इट इज क्लियर नाउ। यस। मैंने तो इतनी गाल तो बताया।
सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, आज के सेशन में बहुत डिस्टरबेंस हुई, आई एम सॉरी फॉर दैट। बच्चा आप क्लियर है, आपको एवरी पॉइंट यस मैम, इट इज क्लियर ना। क्लियर है ना? सॉरी सॉरी फॉर इरिटेशन, क्योंकि मुझे दुख हो रहा था यार, यू आर गोइंग टू अपीयर इन द एफसीपीएस। पहले इस फोकस करो, कंसंट्रेट करो, हम किस सेशन पे खड़े हुए हैं, क्या बोल रहे हैं, कहीं पे हैं। सो दिस इज द अलर्ट। करती है ना, समझ में आ जाता है। सॉरी, मैंने कहा जब आप गुस्सा करती है ना तो समझ में आ जाता है। नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे अपने आप को बीमार नहीं करना है, आप लोगों को पढ़ाऊं और फिर खुद तकलीफ में आ जाऊं, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि गुस्सा नहीं करूं। गुस्सा मेरे लिए नुकसानदेह है ना, आपके लिए तो फायदामंद है। इट्स नॉट मे। मैम आपका म्यूट हो गया माइक। सॉरी। सो ये अलर्ट लाइंस हैं, ये ब्लड प्रेशर की लोअर लिमिट है, पल्स लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ब्लड प्रेशर लोअर लिमिट, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मोर देन 140 है तब भी डेंजरस है, अगर लेस देन 80 है तब भी डेंजरस है। डायस्टोलिक मोर देन 90 है तो डेंजरस है। टेम्परेचर, इसकी भी डिफरेंस रेट दिया गया है, राइट। so this P is for protein, this A is for albumin, na? P is for pus, sorry, P is for pus cells, A is for albumin, right? So this is the session 4. क्लियर हो गया आपके माइंड में? मैम पी फॉर तो प्रोटीन है मैम, ए फॉर एसीटोन है। एसीटोन, ओके। Acetone. P for protein और A for acetone. I'm sorry for that. कोई बात नहीं मैम। Session 5 is the progress of the labor. इसका एम क्या है? The systematic practice of intermittent monitoring of the labor progression parameters. अब WHO क्या बोल रहे हैं? For women with spontaneous labor onset, the cervical dilatation rate of 1 centimeter per hour during the first stage is inaccurate to identify women at risk of adverse birth outcome and is therefore not recommended. Labor may not naturally accelerate until a cervical dilatation threshold of 5 centimeters is reached. When women should be informed, the first stage 12 आवर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पहला बच्चा है द फर्स्ट लेबर, द फर्स्ट एक्टिव फर्स्ट स्टेज नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 12 आवर्स। प्राइमरी में फर्स्ट स्टेज 12 घंटे, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सबसीक्वेंट लेबर सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे मीन मल्टीप में 10 आवर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। So this is for active first stage, not for the latent phase. This is for active first stage. Duration of the second stage, प्राइमरी में 3 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 आवर्स में हो जाती है। मल्टीप 2 घंटे, राइट। सो प्राइमरी में 3 आवर्स, मल्टीप में 2 आवर्स। सो दिस इज द चार्ट, ये एक एक घंटे का चार्ट है फॉर द लेबर प्रोग्रेस 1 आवर। सी हियर, दिस इज द आवर। फिर इसको 30 मिनट्स में डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, राइट। सो सी हाउ यू मॉनिटर दिस। पेशेंट 5 सेंटीमीटर, सपोज द पेशेंट 5 सेंटीमीटर 2 बजे हुई है, ठीक है। तो 2 बजे आपने यहाँ पे लिख लिया, 2 PM,
अब 2 PM पे उसकी कॉन्ट्रैक्शन क्या थी वो आप यहाँ पे लिखेंगे। पहले हम क्या करते थे, डॉट लगाते थे ऐसे 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 ऐसे, या ऐसे मार्क करते थे, लाइनें लगाते थे, या पूरा फिल कर देते थे कॉलम ना, फॉर माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। बट हेयर हम लिखते हैं 2 कितनी कॉन्ट्रैक्शन है, 2, बस सिर्फ 2 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है पर 10 मिनट्स। यहाँ हमने 2 पर 10 नहीं, बस 2 लिखे हैं, 3 लिखे हैं, 4 है, कितनी है, 2 है, 10 है, 3 है, 4 है, ठीक, जो भी है। और ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आप यहाँ पे लिखेंगे 20 सेकंड्स, 26 सेकंड्स, या 30 सेकंड्स की है, या 60 सेकंड्स की है, ये आप नीचे लिखेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस, यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस। पहले हम क्या करते थे, 3 कॉन्ट्रैक्शन होती थी, 1 2 3, तीनों खानों को फिल कर देते थे, 3 कॉन्ट्रैक्शन आ रही हैं 10 मिनट में। मगर अभी ये नहीं है, अभी हम सिर्फ लिखते हैं 2 कॉन्ट्रैक्शन से 10 सेकेंड्स की है, 20 सेकेंड्स की है, ये यहाँ पे लिखना है। और ये आप तब स्टार्ट करोगे जब ये 5 सेंटीमीटर और मोर देन 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर पे ये कॉन्ट्रैक्शन है, फिर आप अकॉर्डिंगली फिल करोगे, राइट। सो दिस इज द सर्विकल डायलिटेशन। सर्वाइकल डायलिटेशन एक्स में प्लॉट होगा, ये एक्स में होगा, ये लिखा हुआ है प्लॉट इन द एक्स, और दिस इज द डिसेंट, प्लॉट इज द ओ, ठीक है। सो सर्वाइकल डायलिटेशन 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9, 10। अब ये सपोज करें 2 बजे 5 सेंटीमीटर थी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे मार्क करेंगे क्रॉस, 2 बजे ये डायलेटेशन इसकी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर 4 घंटे के बाद आपने देख ली तो कितने भी सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर बढ़ी, 2 सेंटीमीटर बढ़ी, सपोज करें 8 सेंटीमीटर हो गई, तो आपने यहाँ पे करना 4 घंटे, 1 2 3 4, ठीक है। तो डायलेटेशन कितनी थी, 8। यहाँ पे आके आपने प्लॉट करना है, क्लियर। तो आपका ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ये वाला 8। मैम जो भी आवर मेंशन करना होगा, जैसे आपने 4 आवर बोला तो उसके 4 आवर के बाद हमने मेंशन करना है, मतलब इन बिटवीन 3 और 4 नहीं, बल्कि 4 to 5 है ना। देखिए मेरी बात सुने, आप जब भी एग्जामिनेशन करोगे आइडियल रिकमेंडेशन है कि एवरी 4 आवर्स पर वजाइनल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। तो आप एवरी 4 आवर करोगे, मगर इन द एग्जाम और इन द रियल सिनेरियो इफ यू डू पर वजाइनल एग्जामिनेशन बिफोर दैट, तो आप प्लॉट उसी टाइम पे करोगे ना जब आपने एग्जामिनेशन किया है। अगर आपने 2 घंटे के बाद किया है तो 2 घंटे के बाद मेंशन करोगे, अगर आपने 3 घंटे के बाद किया है तो 3 घंटे के बाद मेंशन करोगे। Mute your mic, please. Mute your mic. This is the difference. Mute your mic, please. Now clear? Cervical dilatation, descent, dilatation, then descent. अब descent जाहिर है ऊपर से नीचे आएगा, डायलेटेशन नीचे से ऊपर जाएगी, ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ये ग्राफ ऐसे आएगा, डिसेंट। पहले हम देखते थे स्टेशन पर वजाइनली, मगर आप यहाँ पे लिखेंगे 4/5, 5/5, 3/5, 2/5, 1 और 0। तो ये आप प्लॉट करोगे 0 पे, 0। क्लियर? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर?
Ma'am, per Yes, vaginally ma'am. or per abdominally? We will do This- per abdominally. This is per abdomen. Okay. Section 6 is for medications. Mute ले अपनी mics को. Medication used during labor. The all types of medication used during labor by describing whatever the woman is receiving. Oxytocin, क्या मेडिसिन लिए, उसका कितना डोज लिया है, कोई और मेडिसिन लिए, आईवी फ्लूइड्स लिए, जो भी लिया है सब कुछ यहाँ पे मेंशन करना है आपने. WHO रिकमेंडेशन क्या है? Pharmacological pain relief is recommended according to woman's preference. अगर माँ चाहती है कि मुझे पेन रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताएं या इंजेक्शन लगाएं या एंटोनॉक्स दें, एपिड्यूरल दें, जो भी है वो माँ की प्रेफरेंस पे होगा. The use of oxytocin, antispasmodic agents and IV fluids for preventing labor delay is not recommended. Mean प्रिवेंट करते हैं लेबर डिले, मीन लेबर डिले ना हो, उसके लिए कोई नोस्पा लगा देता है, कोई ट्रॉमा लगा देता है, कोई कुछ लगा देता है. इट्स नॉट रिकमेंडेड. सो सी हियर किस टाइम पे मरीज एडमिट हुई थी, कौन सा फ्लूइड दिया था या नहीं दिया था. नहीं दिया था तो बस लाइन लगा दें, कुछ नहीं करना, बस नो मेडिसिन, आईवी फ्लूइड्स. अगर इंटरलेक्टेड लगी है, नॉर्मल सलाइन लगी है, कौन सी मेडिसिन दी है, किस डोज में दी है, आपने सारा यहाँ पे लिखना है, फुल रिकॉर्ड. WHO रिकमेंडेशन हो सकता है नेक्स्ट टॉक्स में आए, क्योंकि इस टॉक्स में अगर WHO रिकमेंडेशन नहीं आई है तो इस लेबर केयर गाइड अगर दोबारा से आई तो वो सेम तो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ उसमें चेंज होगा. So you have to read all these WHO recommendations too. Section 7 is the shared decision making. इसका एम क्या है? To facilitate continuous communication with the woman and her companion. जो उसके साथ आई है, बहन है, माँ है, हस्बैंड है, पड़ोसन है, कोई भी है, उसे continuous communication with the woman and her companion and consistent recording of assessment and plan agreed. उनके साथ प्लान एग्रीड करना है, अपनी नहीं चलानी. नहीं नहीं हम तो ये करेंगे, उसकी सुनते ही नहीं है. नो, एग्रीड प्लान, वुमन उसको बताना है. Clear explanation of the procedures and their purpose should always be provided to each woman. हम फॉर्सेप लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, सिंटो की ड्रिप लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, इसका क्या पर्पज है, हम फ्लूइड्स दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्या पर्पज है इसका, एनाल्जेसिक्स ये दवाई दे रहे हैं, इसका क्या मकसद है, क्यों कर रहे हैं. क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसीजर्स. व्हाट्सएप लगाओ, वैक्यूम करो, सीजर करो, कुछ भी करो, या फीटल बेड सैम्पलिंग कर रहे हो, सीटीजी कर रहे हो, यू हैव टू मेंशन ये प्रोसीजर हम कर रहे हैं और इसका एम ये है. दिस इज द clear communication with the patient and the companion. The findings of the physical examination should be explained to the woman and her companion and subsequent course of action made to clear to enable shared decision making. आपकी जो भी एग्जामिनेशन फाइंडिंग से मरीज को बतानी है, उसके कंपेनियन को भी बतानी है कि अब आप इतना डायलेट हुई हैं, इतना बच्चा नीचे आया है, बच्चे की धड़कन बिल्कुल सही है, ब्लड प्रेशर बिल्कुल सही है, या ये मसला हो रहा है और हम ये करना चाह रहे हैं, या आप क्या बोल रही हैं. ठीक है. सो दिस इज द शेयर्ड डिसीजन मेकिंग. ये सिर्फ आपका डिसीजन नहीं होगा जैसे पार्टोग्राम में होता था. दिस इज नॉट योर डिसीजन, दिस इज द शेयर्ड डिसीजन मेकिंग. सो WHO रिकमेंडेशन क्या है? Respectful maternity care. What is this respectful maternity care? This is a care organized for and provided to all women in a manner that maintains their dignity, privacy, and confidentiality.
ensures freedom from harm and mistreatment, and enables informed choices and continuous support during labor and childbirth is recommended. अगर delayed progress है तो उसमें आप informed choice देंगे, वेट कर सकते हैं, ऑगमेंट कर सकते हैं, सीजर कर सकते हैं, ये ऑप्शंस हैं हमारे पास, ठीक है. So you have to tell them the problems and their informed choice accordingly. Effective communication between maternity care providers and women in labor using simple and culturally acceptable method. ये नहीं है कि हम अपने उसमें लेबर रूम में मर्दों को बुला लेंगे कि आप हस्बैंड को खड़ा कर लें. हमारा कल्चर ऐसा नहीं है. हमारा कल्चर अभी मर्दों को लेबर रूम में बुलाने का नहीं है. जो हमारा कल्चर एक्सेप्ट करे हम वही काम करेंगे, ठीक है. सो कल्चरली एक्सेप्टेबल एंड सिंपल मेथड्स आर रिकमेंडेड. सो दिस इज द शेयर्ड डिसीजन. ये आपकी असेसमेंट है. इस टाइम पे आपने इस टाइम पे असेसमेंट किए. आपका ये असेसमेंट थी कि ये सेकंड स्टेज प्रोलॉन्ग है या फर्स्ट स्टेज प्रोलॉन्ग है या डिलेड प्रॉब्लम आ रहे हैं. आपका प्लान क्या है, तो पेशेंट और आपका एग्रीड प्लान क्या है, फिर नीचे सिग्नेचर होता है. क्लियर? एम आई क्लियर गाइस? एम आई क्लियर? हेलो. Can you, ma'am, please? Yes, ma'am. Can you, ma'am, please repeat this last one only Which one? This one? in assessment, for the assessment? Yes. This is assessment. बच्चा आपने जो भी असेसमेंट किया आप यहाँ पे लिखेंगे ना, उसका डायग्नोसिस क्या है. नॉर्मल जा रहा है, कंटिन्यू लेबर केयर गाइड. Okay, ma'am. It means any findings, we will write our findings when we assess the patient. Not finding, your assessment. ठीक है. अगर आपकी फाइंडिंग्स असेसमेंट एक बाबा दिस इज द नॉर्मल, तो प्लान कंटिन्यू लेबर केयर गाइड. प्रॉब्लम आ रहा है, Okay. प्रोलॉन्ग फर्स्ट स्टेज, आपका ये आ रहा है सेकेंडरी अरेस्ट, प्राइमरी अरेस्ट. आप यहाँ पे वो लिखोगे ना आपका क्या प्लान है अभी. Yes, ma'am. I got it. Got it? So this is the shared decision. Yes, ma'am. Thank you. Okay, so coming to the case. आपको वहाँ केस भी मिला था ना एग्जाम में कि ये सिनेरियो, अब इसको फिल करें. मिसेस मैरी जेम्स 7 जून 2020 को 6 बजे आई है. टाइम 6. मैरी 6 बजे मीन सुबह के 6 बजे, ये शाम के 6 नहीं है. यहाँ पे AM PM नहीं लिखा हुआ. 6 मीन 12 के बाद 1 2 3 4 5 6. That is the 6. So Mary Janes, a low-risk pregnant woman, presented with contractions and reports that she has experienced leakage of fluid from the vagina for last hours. She is 38 weeks. This is her 4th pregnancy. She previously had 2 births, one of live baby and one of stillbirth at Tram. She also had a miscarriage. 2 बच्चे, एक नॉर्मल है जिंदा है, एक स्टिल बर्थ था पूरे महीने का, एक मिसकैरेज है. शी इज टेकिंग ओरल आयरन टू ट्रीट एनीमिया. द मिडवाइफ इन चार्ज ऑफ द एडमिशन आस्क्ड ऑल नेसेसरी क्वेश्चन and she offers Mary Jane's clinical evaluation to assess the baby well-being in labor stage. Among other parameters, the midwife found that Mary Jane has regular contractions. 3 कॉन्ट्रेक्शन आ रही हैं एवरी 10 मिनट्स में. 5 सेंटीमीटर डायलेटेड है और रप्चर्ड मेम्ब्रेन है. अब इसको कैसे फिल करेंगे आप? अब देख लें मेरी जेन, इसका नाम यहाँ पे लिखा है. पेरिटी 2 है, एक मिसकैरेज है, +1 यहाँ पे लिखना चाहिए, 2 + 1. लेबर ऑनसेट क्या है? स्पॉन्टेनियस. हमने नहीं इंड्यूस किया है, स्पॉन्टेनियस लेबर में गई है, ठीक है. एक्टिव लेबर डायग्नोस्ड 5 सेंटीमीटर. क्या लिखा है यहाँ पे? 5 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्टिव लेबर डायग्नोस्ड. रप्चर्ड मेम्ब्रेन, कब हुई थी रप्चर्ड मेम्ब्रेन?
और लास्ट और 6 बजे आई थी, इसका मतलब 1 घंटा पहले हुई है। क्लियर? यस मैम। 7 जून को सुबह 5 बजे, ठीक है। 6 बजे आइए, 1 घंटा पहले हुई है, तो आपने 5 लिखना है ना। अब इसमें रिस्क फैक्टर क्या थे, कौन से रिस्क फैक्टर थे? एक तो एनीमिया। एक बेबी मर गया, एक मिसकैरेज। मिसकैरेज अब से तो ये बच गई ना, अभी एक बेबी मर गया है, तो ये बेबी भी मर सकता है, मीन रिस्क ऑफ स्टिल बर्थ और एनीमिया, राइट। सो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स। समझ में आ गया कैसे फिल करना है? यस मैम। अब आगे आओ, सुबह 6 बजे सेम डेट है, Mary Jane received a journal and clinical assessment and she has been admitted to the labor ward। क्योंकि 5 सेंटीमीटर थी, उसकी हमने गाइड, लेबर केयर गाइड भरना शुरू कर दिए, इसको एडमिट कर दिया गया है। She is monitored by midwife on duty, but she is not accompanied by a relative or someone from her social network। अब वो अकेली है, कोई भी उसके साथ नहीं आया, मीन कैंपेन नो, नहीं लिखेंगे नो। She reports feeling significant pain due to the uterine contractions and request pain relief। अब उसको दर्द हो रहे हैं, बोल रही है कि मुझे दर्दों के लिए कुछ दो। She drank a fruit juice and is walking, right? अब उसका पोस्चर क्या है? वॉकिंग। फ्लूइड्स क्या है? फ्रूट जूस। पेन रिलीफ के लिए वहां पे आपने सब कुछ भरना है, इसलिए इसको क्लियर पढ़ना है। एग्जाम में तो बहुत छोटा सिनेरियो दिया गया था जो आप आंखें बंद करके फिल कर सकते थे, मगर हम यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट दे रहे हैं ताकि आपकी एक्सरसाइज हो। The midwife caring for and monitoring Mary Jane during labor offered her a companion of her choice। अब मिडवाइफ ने उसको बता दिया है कि अगर आप कंपेनियन बुलाना चाहें तो अपनी मर्जी का बुला सकती हैं। उसने बोला मुझे अपनी सिस्टर चाहिए कंपेनियन, तो मिडवाइफ ने डायरेक्शन दे दी कि इसकी सिस्टर को कॉल करें एंड how to call for assistant। She would be called for assistant। Give that another woman was in the labor in the same room। मिडवाइफ ने नोटिस किया कि दूसरी औरत भी है सेम रूम में, तो उसने बीच में पर्दा डाल दिया, मीन उसकी प्राइवेसी को मेंटेन किया। दिस इज द मैटरनिटी केयर। Mary Jane is with her sister and receiving instruction on relaxation technique for pain relief, right? अब पेन रिलीफ के लिए क्या था? रिलैक्सेशन टेक्निक। ये 6 बजे का है। 7 बजे क्या हुआ? उसकी सिस्टर भी आ गई, वो पेन रिलीफ के लिए टेक्निक भी यूज कर रही है। शी हैज बीन ड्रिंकिंग वाटर व्हेन थर्स्टी, वो पानी भी पी रही है। इट्स नाउ लाइंग इन द बेड इन अ सुपाइन पोजीशन। चलिए हम इसको फिल करें। सी हियर, 6 बजे आई मेरी जेन आपके पास, कैंपेनियन नहीं था, पेन रिलीफ नहीं लिया, ओरल फ्लूइड यस पी रही थी, पोस्चर मोबाइल थी, घूम रही थी। क्लियर, नजर समझ में आ रहा है? यस मैम। 7 बजे उसकी बहन भी आ गई, उसने रिलैक्सेशन टेक्निक भी ले ली पेन रिलीफ के लिए, ओरल फ्लूइड वो ले रही थी, पोस्चर क्या था? अब लेट गई है। समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक, यस मैम। आगे चलो। यस मैम। 6 बजे उसके बच्चे की धड़कन, अब तो हमने ये था आज का सेकंड सेशन सपोर्ट केयर, बाकी सेशन भी तो फिल करने हैं ना आपने। तो 6 बजे इसके की धड़कन थी 140 पर मिनट विदाउट डिसेलरेशन। 6 बजे उसका वजाइनल इंफॉर्मेशन हुआ था, 5 सेंटीमीटर सर्विकल डायलेटेशन, इफेलिक प्रेजेंटेशन, no caput or mouth, and fetal position is up to posterior, amniotic fluid is clear। 6 बजे की फाइंडिंग से 6:30 बजे 136 बीट पर मिनट विदाउट डीसल, डीसल नहीं है, डीसल यहाँ भी नहीं है। फीटल हर्ट्स यहाँ पे 140 थे, 30 मिनट्स में आपने फीटल हर्ट्स नोट किए, 136 है, फिर आपने 30 मिनट्स के बाद चेक किए 132 है, बट
यहाँ पे वेरिएबल डीसल आ रही है, राइट। फिर आधे घंटे में आपने फीटल हर्ट्स चेक किए, क्योंकि फीटल हर्ट्स को आपने आधे आधे घंटे में चेक करने हैं। तो आधे घंटे के बाद इसकी फीटल हर्ट्स से 148 बीट पर मिनट विदाउट डीसल, राइट। द मिडवाइफ चेक मेरी जेन्स पेड, अब यहाँ पे क्या था, वेरिएबल डीसल, अब वो पेड भी चेक कर रही थी क्योंकि उसका फ्लूइड लीक था। तो शी ऑब्जर्व दैट amniotic fluid is clear, other parameters are normal, and Mary Jane is coping well with labor. Midwife continue check tellers every 30 minutes to check amniotic fluid during next vaginal examination. अब इसको प्लॉट करें फीटल वाले खाने में, आ जाए यहाँ पे। This is the supportive care. Now baby. Session 3 is the baby fetal monitoring. See here, 6 बजे आई थी, 140, आधे घंटे 6:30 बजे 136, 7 बजे 132, 7:30 बजे 148। डीसल 6 बजे नहीं थी, 9, 6:30 बजे 9, 7 बजे वेरिएबल डीसल, फॉर वेरिएबल, A for 8, 7:30 बजे 9। amniotic fluid clear, fetal position occipito-posterior, केपट 0, माउल्डिंग 0। समझ में आ गया कैसे फिल करना है मेरी का? जी मैम बिल्कुल क्लियर। अब मुझे कंप्लेन लेबर में या एग्जाम में आप लोगों को लेबर केयर गाइड फिल करना नहीं आई। जी मैम इंशाल्लाह आ जाएगी, बहुत अच्छा आपने समझाया। अब आ जाओ वही 6 PM से। अब मदर की भी फाइंडिंग्स आपने लिखनी है, जहाँ पे मेटरनल वेलबींग था। मेरी जेन पल्स is 88 beat per minute with blood pressure of 120/80. Her temperature is 36.5 centidegree. She passed urine at admission without proteinuria or acetone. Given that all clinical women parameters are normal, the midwife plans to assess woman observation in 4 hours unless otherwise indicated. अब 4 घंटे के बाद उसने पीवी करनी है, उसने डिसाइड कर लिया है, हर चीज सही है, लैकर क्लियर है, माउडिंग के पट नहीं है, माँ भी सही है, बच्चा भी सही है। फीटल हर्ट्स बीपी वो तो करती रहेगी, मगर पीवी वो 4 घंटे के बाद करेगी। 6 बजे आई थी तो उसने 10 बजे एग्जामिनेशन किया है। 96 बीट पर मिनट है, ब्लड प्रेशर 128/84 है, टेम्परेचर 36.9 है। She passed urine again without proteinuria or acetone. अब इसको फिल करें। So this is the third column of woman. 6 बजे 88 पल्स थी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 था। ये सारा रेंज में आ रहा है। You have to see this. This is in the normal range. ये यहाँ पे अलर्ट कॉलम में थ्रेशोल्ड है इसके, ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80, temperature 36.5, it's a normal, it's normal. Urine normal, no protein, no acetone. This is for protein, this is for acetone. तो इस तरीके से आपने फिल करना है। This is for protein, this is for acetone. शुरू वाला प्रोटीन है, बाद वाला एसीटोन है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है PA। अब 4 घंटे के बाद ये इसकी फाइंडिंग्स है। क्लियर, समझ में आ रहा है? 4 घंटे के बाद बेबी की पोजीशन भी चेंज हो गई है, ट्रांसफर्स हो गई है। यहाँ पे ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर थी, ये ट्रांसफर्स हो गई है। माँ स्टिल सुपाइन पोजीशन में है। क्लियर, फ्लूइड ले रही है, कैंपियन लग रहा है उसका चला गया है। ये क्या कैंपियन है ना, पेन रिलीफ नहीं ले रही।
ये डिपेंड करता है उस पेशेंट्स पे। 4 घंटे पे देखते हैं क्या आ रहा है। अब ये पूरा डिटेल है। कॉन्ट्रैक्शंस अब आएंगे लेबर प्रोग्रेस पे। माँ हो गई, बच्चा हो गया, सपोर्टिव केयर हो गई, बायोडेटा हो गया। अब आ जाओ लेबर प्रोग्रेस। मेरी जेन प्रेजेंटेड विद 3 यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस एवरी 10 मिनट्स। वहां पे लिखा था ना 6 बजे 3 कॉन्ट्रैक्शंस आ रही है, मॉडरेट इंटेंसिटी है और एवरी 40 सेकेंड में आ रही है। Vaginal examination 5 cm cervical dilatation, cephalic, fetal descent 4/5. Given that all other clinical parameters are normal, Mary Jane is coping well with labor. The midwife assess the number and duration of uterine contraction hourly. एक घंटे में वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को असेस कर रही है। 30 मिनट्स में बच्चे की धड़कन देख रही है। एक घंटे में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को असेस कर रही है। ठीक। Unnecessary vaginal examination are avoided and vaginal examination are only performed after 4 hours. ठीक। 4 घंटे के बाद vaginal examination हुआ, देखें क्या आता है। मेरी को स्ट्रॉन्ग दर्द शुरू हो गए, सिस्टर चली गई, लेफ्ट द लेबर वार्ड। वहां पे नो लिखा था ना, ये देखो ये चली गई है, इसका कैंपेनियन नहीं है, कैंपेनियन चला गया है, यहाँ पे था चला गया है। Sister left the ward and Mary Jane is alone, lying in bed in a supine position. Her vitals are heart rate 96, blood pressure 128/84, fetal hertz 151 with variable diesel, 3 strong contractions in 10 minutes, 50 seconds की आ रही है। Fetal descent 3/5, cervical dilatation 8 cm, fetal position occipital transverse। अब हो गई OT। Amniotic fluid shows meconium 1+। अब ये 4 बजे की फाइंडिंग से, 4 घंटे के बाद की फाइंडिंग से। Midwife offer her a companion of her choice. She wanted to her sister जो चली गई थी। The midwife gives directions to Mary Jane's sister on how to support the Mary Jane and comfort her by using a cool, damp cloth. क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर कितना है? मैम का टेम्परेचर 36.5 था, सही था, नॉर्मल। अभी 36.5 है। ठीक है। On her face and body and by massaging her back, वो उसको सपोर्ट कर रही है। ठीक है। तो दर्दों में उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उसको कूल डैम्प क्लॉथ ऑन हर फेस बॉडी एंड मसाज हर बैक। ये इसकी सपोर्टिव केयर है, उसकी बहन देगी। मेरी जेन मेंटेन्स 3 यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट्स। अब आ गई 10 बजे के बाद 11, 12, 1, 13, 11, 12, 13 मीन 3 घंटे के बाद। मेरी जेन मेंटेन 3 यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट्स, 50 सेकेंड्स की है, वही जो यहाँ पे थी। फीटल डिसेंट इज 2/5, बच्चा नीचे आ रहा है, यहाँ पे 3/5 था। 3 घंटे के बाद वो 2/5 हो गया है। सर्विकल डायलेटेशन इज 10 सेंटीमीटर, वहाँ पे 8 सेंटीमीटर थी। एंड द फीटल पोजीशन इज ऑक्सीपिटल एंटीरियर, यहाँ पे ट्रांसवर्स थी। 10 बजे ट्रांसफर थी, 1 बजे ऑक्सीपिटल इंटीरियर हो गई है। Amniotic fluid shows meconium 1+. Fetal hertz 132 beats without diesel. Right? अब ये 10 सेंटीमीटर हो गई है 1 बजे। ये सारी प्लॉटिंग अब 1:30 बजे 13:30, आधे घंटे के बाद मेरी जेन मेंटेन 4 यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट्स लास्टिंग फॉर 50 सेकेंड्स। फीटल डिसेंट 0/5। अब ऊपर से कुछ नहीं है, सारा नीचे आ चुका है। फीटल हर्ट्स 118 बीट पर मिनट विद अर्ली डीसल। चाइल्ड बर्थ टेक प्लेस वजाइनली एट 13:45, 1:45 बजे डिलीवर्ड हो गई मेरी। क्लियर? अब आ जाओ इस पे। अब ये देख ले मेरी जेन का पूरा पार्टोग्राम। ये लेबर केयर गाइड 6 बजे आई थी,
कोई कंपेनियन नहीं था, पेन रिलीफ नहीं ले रही थी, ओरल फ्लूइड ले रही थी, पोस्चर मोबाइल था। 6 बजे यूट्राइन एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर था, फीटल पोजीशन ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर थी, केपर्ड भी नहीं था, माउल्डिंग भी नहीं थी, पल्स 88 थी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 था, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 था, टेम्परेचर 36.5, नो एसीटोन नो प्रोटीन, नो प्रोटीन नो एसीटोन। ये 6 बजे की फाइंडिंग से। 6 बजे कॉन्ट्रेक्शन कितनी थी? 3 कॉन्ट्रेक्शन थी 40 सेकेंड्स की। 6:30 बजे, क्योंकि कॉन्ट्रेक्शन हमने आधे आधे घंटे में देखनी है, जैसे फीटल हर्ट्स देखते हैं आधे आधे घंटे में, ठीक है। सो 6:30 बजे ये फीटल हर्ट्स है, सॉरी ये बेबी का कॉलम है, बेबी का कॉलम में भूल गई आपको बताना। दिस इज द फीटल हर्ट्स। डिसेलरेशन नो नो, जहाँ पे वेरिएबल आ रही है नो 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 नो, वेरिएबल डीसल जहाँ पे आएगी वहीं पे लिखेंगे। ये फीटल हर्ट्स रेट है, कितना है? 140 है, 130 है, कितना है? पर मिनट नहीं लिखना, क्योंकि पर मिनट यहाँ पे लिखा हुआ है फीटल हर्ट रेट, ठीक। और यहाँ पे ये भी नहीं लिखना वेरिएबल डीसल, डीसल यहाँ पे लिखा हुआ है, सिर्फ लिखेंगे नो 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 वेरिएबल और लेट जो भी होंगी उसका पहला वर्ड लिखेंगे, ठीक। ये फीटल पोजीशन से, बच्चे की पोजीशन से, नो माउल्डिंग नो केपर्ड, ये मांग का है। दीज आर द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। 3 कॉन्ट्रैक्शंस थी, फिर आधे घंटे के बाद 3 है, हर आधे आधे घंटे में ये कॉन्ट्रैक्शंस थी। 3 ही मेंटेन किए उसने। और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, स्ट्रेंथ है 40 मिनट 40 मिनट 40 40 40 45 45 45 50। अब ये 50 की स्ट्रेंथ है, 50 ये सेकंड से। सी हियर ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन सेकंड्स, ये पर 10 मिनट्स है, ये पर 10 मिनट्स है, 3 पर 10 मिनट्स। इसको पर 10 मिनट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर। अब यहाँ पे क्या था? सर्विक्स 6 सेंटीमीटर पे, ये 5 सेंटीमीटर था 6 बजे। 4 घंटे के बाद पीवी हुई, 6 बजे 5 सेंटीमीटर था, 7 8 9 10, 10 बजे कितना हुआ? 8 सेंटीमीटर। फिर 3 घंटे के बाद हुई 10 11 12 1 बजे क्या था? 10 सेंटीमीटर हो गई। अब प्लॉटिंग आ रही है आपको? यही मेरी जी मैम। 6 बजे डिसेंट क्या था इसका? 4/5, मीन 4/5 या 4 पे। और प्लॉट देखो हमने ओ में किया है, यहाँ पे हमने क्रॉस में किया है। 4 घंटे के बाद ये कहाँ पे आ गया? 3/5। 1 बजे 3 घंटे के बाद ये कहाँ पे आ गया? 2/5। और 1:30 बजे यहाँ पे ये फुली हो गई ना, मीन फर्स्ट स्टेज ओवर, फुली 10 सेंटीमीटर। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। ये हर चीज नॉर्मल है और यहाँ की इस रेंज में थ्रेश होल्ड है हमारा। अब ये आ गया सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज कैंपेनियन था साथ में, सुपाइन पोजीशन में थी। ये इसके फीटल हर्ट्स हैं, ये देख रहे हो आप लोग। और ये कोई डीसल, फीटल हर्ट्स डीसल, ये इसकी कॉन्ट्रैक्शंस, ये डिसेंट, ये पोजीशन, राइट। बच्चा 1:45 बजे डिलीवर्ड हो गया। टाइम देखो, ये फाइंडिंग्स थी 1 बजे की या 1:05 की। 1:45 बजे बच्चा डिलीवर्ड हो गया है, तो यहाँ पे उसने फाइंडिंग्स लिख दी है। क्लियर? समझ में आ गया मेरी जेन का पूरा किस्सा और किस तरीके से ये मैडम आपको सेकंड स्टेज में ये पीपी क्या शो कर रहा है? सेकंड स्टेज में ये वाला P? प्रेजेंटिंग पार्ट ही हुआ ना बच्चा, पोजीशन नहीं। मैडम पोजीशन को शो कर रहा है, नीचे लिखा हुआ है। सॉरी,
Pushing, madam. Insert P to indicate pushing begins. Pushing. This is the P pushing. पुशिंग वो पुश करेगी. दिस P ये यहाँ पे लिखा हुआ है. सेकेंड स्टेज P फॉर पुशिंग. व्हेन द पुशिंग बिगिन, जब वो पुश करेगी तब यहाँ पे लिखोगे वो पुश कर रही है. ठीक है. So this is the whole scene of Mary Jane. She delivered, and you will fill all your laboring women with this labor care guide. Mary Jane had normal progress of the labor. अब क्या बचा? Sheer decision. So Mary Jane had normal progress of the labor and childbirth. During labor, Mary Jane was encouraged to walk and to have a companion of her choice. Clinical parameters remain within normal threshold. Consequently, additional intervention were not required. अब आ गया ये सारा कॉलम. शेयर डिसीजन, मेडिकेशन, कहीं पे भी इसको कोई भी मेडिसिन नहीं दी है. देख लो, ओरल फ्लूइड, ऑक्सीटोसिन, पेन रिलीफ, इंजेक्शन, एंटोनॉक्स, कुछ भी नहीं. वो रिलैक्सेशन टेक्निक यूज कर रही थी और उसकी बहन उसको बैक मसाज कर रही थी, उसको सपोर्ट कर रही थी, कैंपेनियन जो था. शेयर डिसीजन. सॉरी, see here the sheer decision. वो उसकी पिक्सल वो हो गई है तो मुझे ही समझ में नहीं आ रहा. लिखा है नॉर्मल प्रोग्रेस, नॉर्मल प्रोग्रेस, नॉर्मल प्रोग्रेस. ठीक है. असेसमेंट क्या है? नॉर्मल प्रोग्रेस. नॉर्मल 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 प्रोग्रेस. तो यहाँ पे क्या करना है? प्लान ऑफर नहीं समझ में आ रहा. इसका पिक्सल फट चुका है ना. सो कंटिन्यू लेबर केयर गाइड, कंटिन्यू मैटरनिटी केयर, कंटिन्यू लेबर केयर गाइड. ये आपका शेयर डिसीजन है. आपने कोई इंटरवेंशन नहीं किया है, कुछ नहीं किया है. So this is the case of Mary Jane. How to fill this labor care guide? What is the labor care guide? What are its aim? When it should be initiated? What are WHO recommendation for all seven these sections? And how this labor care guide is differ from partogram? So this is all about it. What are the WHO recommendations? ये सारी recommendation in WHO की ईच एंड एवरी पॉइंट पे वो आप फिंगर टिप्स पे याद कर लें. ये लेबर केयर गाइड का अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो मैं व्हाट्सएप में लगा देती हूँ. लेबर केयर गाइड, ये सारी रिकमेंडेशंस हैं. एनी क्वेश्चन? यस मैम प्लीज. मैडम प्लेन के नीचे जो इनिशियल्स लिखा हुआ है वो कैसे फिल करना है? सिग्नेचर्स का. इनिशियल्स मीन सिग्नेचर्स. So this is लिखा हुआ वो समझ नहीं आ रहा. sorry, सर्वाइकल डायलेटेशन के साथ आवर्स लिखे हुए मोर देन और इक्वल और इस पे साथ में वो जरा बता दें प्लीज. हाँ सॉरी वो तुम्हें बताना भूल ही गई आप लोगों को. मैम थोड़ा असेसमेंट वाला बता दे मैम, वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से करना है. बेटा असेसमेंट नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? नॉर्मल लेबर प्रोग्रेस कर रहा है, असेसमेंट है ना. दिस इज द असेसमेंट. नॉर्मल लेबर प्रोग्रेस कर रहा है या कहीं पे प्रॉब्लम है.
ब्रेडिकार्डिया है बच्चे में, फीटल डिस्ट्रेस है, लेट डिसेलरेशन है, फीटल डिस्ट्रेस है, नॉन प्रोग्रेस ऑफ लेबर है, सेकेंडरी अरेस्ट है, स्लो प्रोग्रेस है, नॉर्मल प्रोग्रेस है, निकोनिमस स्टेन लाइक करे, ब्लड स्टेन लाइक करे, जो भी आपके assessment है, और आप जो इंटरवेंशन करे वो भी लिखेंगे कि आपका शेयर डिसीजन क्या है, whether you are continue this labor care guide, continue this maternity care, or you have डिसीजन क्या है। अच्छा वो ये मैं बताना भूल गई, सॉरी फॉर दैट, मैं अभी बता रही हूँ आपको। These are the contractions. अच्छा 5 centimeter dilatation. See this. This is the alert column. See this. This is the alert column. This is the alert column. ये पूरी alert है लाइन, ये साइड में है, ये तो पैरामीटर्स है ना जो मॉनिटर कर रहे हैं। These are the parameters which are monitored, but this is the alert where we have alert. ठीक है, अब आ जाए, अगर पल्स इसकी लेस देन 60 है, मोर देन 120 तो हम अलर्ट हो जाएंगे। इसका ब्लड प्रेशर इस रेंज से ये तो हम अलर्ट हो जाएंगे। इसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इस रेंज में तो हम अलर्ट हो जाएंगे। दीज आर द नॉर्मल एंड अलर्ट पॉइंट। ठीक, यहाँ पे सर्विक्स इफ 5 सेंटीमीटर डायलेटेशन मोर देन 6 आवर्स, 5 सेंटीमीटर डायलेटेशन more than 6 hours is abnormal. 6 centimeter dilatation more than 5 hours is abnormal. ठीक है, क्योंकि अब 1 सेंटीमीटर पर और जाएगा। 9 सेंटीमीटर है, मोर देन 2 घंटे हो गए, इसका मतलब है इट्स नॉट नॉर्मल। ये आपका अलर्ट है, दिस इज द रेफरेंस रेंज कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। दिस इज योर रेफरेंस रेंज। मैम ये कॉलम पूरा ऊपर से लेके नीचे तक अलर्ट का ही है ना, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक कॉलम अलर्ट का है फ्रॉम स्टार्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चा देख, दिस इज द टाइम, दिस इज द आवर्स, दिस इज द अलर्ट। सो ये सारा अलर्ट का जाएगा नीचे। सी हियर, ये सारा अलर्ट कॉलम है, आपको कहाँ पे अलर्ट होना है। और ये पैरामीटर्स हैं जो हम मॉनिटर कर रहे हैं, ये सारे पैरामीटर्स हैं। दीज आर द पैरामीटर्स योर मॉनिटर्स। ठीक है, और these are the time zone. This is the time zone. ये एक घंटे का है फुल कॉलम, और उसके हाफ ऑफ घंटे का है ये फीटल अलर्ट्स वाला। ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का भी ये देखिए फुल एक घंटे का है, देन अगेन हाफ ऑफ आवर्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। सी हियर, ठीक है। So this is the time zone horizontal column. This is the parameters which we are monitor in the vertical zone. Am I clear now? Madam, एक question. I have one question. Before there was alert in previous PARTO, modified partogram WHO. There was an alert line between, and there's a active phase, and then alert line, then action line. So now it is not in this partogram, in the guideline, in this That is labor the guide. that is the difference between the partogram and the alert line. This labor care guide. We will not make by our hand. There's no need. You are no need to make with your hand. Everything is clear in this alert line. आपकी ये पता है ना, साइड में लिखी हुई है ना? Yes, ma'am. Okay, thank you. मैडम एग्जाम में हमें सिनारियो दिए जाएंगे कि ये फिल करें और फिर आफ्टर में डिसीजन और प्लान, ये सारा इस तरीके से होगा? बिल्कुल दिया जाएगा। अभी जो लड़कियां अपीयर हुई थी उनका एक्सपीरियंस पूछ लें। बच्चों कौन कौन अपीयर हुआ था, किसके उसमें आया था ये पार्टोग्राम, ये लेबर केयर गाइड? मैडम एक क्वेश्चन पूछना था। हेलो मैडम। यस यस यस, आई एम देयर। मैडम ये जो वजाइनल एग्जामिनेशन है हम लोग एवरी 4 आवर्स करते हैं, लेकिन अगर जो है वो स्लो प्रोग्रेस हो तो उसमें फिर जो पुराने जो नाइसी गाइडलाइन है उसमें ये कि आप 2 आवरली फिर एग्जामिनेशन करते हैं, तो मैडम फिर इसमें भी हम लोग 2 आवर्स के बाद कर सकते हैं पर वजाइनल एग्जामिनेशन?
बेटा इट्स डिपेंड अपॉन कि 4 आवर्स से पहले रिकमेंडेशन नाइस में नहीं है कि आप 2 घंटे में करो. दैट्स डिपेंड अपॉन दिस योर स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है तो प्रोग्रेस तो होगी उसकी. अब रिकमेंडेशन यही है कि एवरी 3 to 4 आवर्स पे जाना एग्जामिनेशन करना है. एवरी 3 to 4 आवर्स. आपको एग्जाम में एक सिनेरियो जस्ट आपको एग्जाम में डिफरेंट सिनेरियोस दिए जाएंगे. ठीक है, लेबर केयर गाइड वहाँ पे होता है, आपको फिल करवाएंगे. जो लड़कियां दे चुकी हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें यहाँ पे.